Bismillahirrahmanirrahim. A very warm welcome to my dear students of class 5. I hope you all are fine and safe at your home. This is your English language unit. Today we are going to start our new topic of the language, which is also the last topic of the language syllabus. And the name of the topic is writing a short story. So as you can see the picture coming on the screen, the title is How to Write a Short Story is. Okay. So in this lecture, first of all, we will talk about how you all are able to write or create a short story. The story outline, which is given in the book, your language book, the grammar tree, and the topic writing a story is taken from your grammar tree language book from class 5. So first of all, when you are writing a story, you should know the outline. ठीक है, आपको स्टोरी लिखने के लिए सबसे पहले आउटलाइन का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है. दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पता होना चाहिए टॉपिक. आपका टॉपिक जो है वो कौन सा है, टॉपिक का टाइटल क्या है. ठीक है. एंड आफ्टर दैट आप फिर उसको क्रिएट कैसे करेंगे, लिखना कैसे शुरू करेंगे. एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम राइटिंग करते हैं, चाहे वो स्टोरी राइटिंग हो, चाहे वो ऐसे राइटिंग हो, या चाहे नॉवेल राइटिंग हो, किसी भी किस्म की राइटिंग जब हम करते हैं तो उसमें एक बड़ी अहम चीज़ का हम ख्याल रखते हैं. ठीक है. और वो अहम तरीन चीज़ क्या है, वो है उसका टेंस, ज़माना. हम कौन से टेंस में स्टोरी को क्रिएट कर रहे हैं, कौन सा उसमें जो है हमारा स्ट्रक्चर यूज़ होगा, कौन से हेल्पिंग वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब हमने यूज़ करने हैं. ठीक है. इस चीज़ का हम बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं वाइल इन स्टोरी राइटिंग, या ऐसे राइटिंग हो या फिर नॉवेल राइटिंग हो. वैसे जब भी ऐसे राइटिंग किया जाता है तो या स्टोरी राइटिंग किया जाता है, ज़्यादातर हम उसको पास्ट में ही क्रिएट करते हैं. ठीक है. यानी कि उसमें हम पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. नाउ माय डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट राइटिंग अ स्टोरी. सो प्लीज़ टेक आउट द लैंग्वेज कॉपीज़, write down the date and day, write down the story writing on the header, and this is the picture which is taken from the grammar tree book from the page number 119. So you can open the page number 119 from the book, and you can use the outline of story writing, outline number 4. Okay. This picture which is appearing on the screen, I am going to start the reading of the outline which is incomplete, and you have to complete the story by using the correct tense and the correct suitable words for completing this paragraph. Okay. This paragraph is written in the present tense. I will definitely convert it into the past tense. But my dear student, if you want to write दिस स्टोरी राइटिंग इन द प्रेजेंट टेंस, तो आप इसको प्रेजेंट में ही लिखिए, और अगर आप इसको पास्ट में चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको पास्ट में चेंज कीजिए. वैसे एक आपको तरीका बता रही हूँ कि जब भी स्टोरी राइटिंग या लेटर राइटिंग या ऐसे राइटिंग किया जाता है तो हम पास्ट टेंस में ही उसको करते हैं. द स्टोरी इज़ टू फ्रेंड्स ट्रैवलिंग थ्रू फॉरेस्ट. सडनली अ बेयर अपीयर्स. वन फ्रेंड हैज़ climbed tree, one cannot climb. Lies down pretending to be dead. Bear smells him, goes away. Friend on tree climbs down, asks friend what bear told him. Friend replies, bear advise him to be aware of friend who desert one in time of need. So this is the incomplete story outline which you have to complete it. I have provided you the guideline as you can see the picture. ओके. अगर आप इसको कॉपी करना चाहें तो इसको कॉपी कर लीजिए, और अगर आप खुद अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, आप उसको खुद स्टोरी को क्रिएट करें. ठीक है. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर क्रिएटिंग द स्टोरी. लेट्स सी व्हाट आई हैव क्रिएटेड. Once two friends were walking through the forest. They knew that the forest is dangerous, so they promised each other to be united.
In case of danger, suddenly they saw a bear appeared in front of them. One friend climbed on the tree, but the other one did not know how to climb. So he used his common sense and laid down, pretending to be dead. The bear came and smelled him, slowly left the place. As bear did not touch dead creatures, the friend on the tree came down and asked his friend what the bear told him. The friend replied, bear advised him to be aware of friend who deserted one in time of need. ओके, सो दिस इज़ द स्टोरी विच आई हैव क्रिएटेड. इसमें जो है उसने किस तरीके से बताया है कि जो दो दोस्त होते हैं वो जंगल से गुज़रते हैं. जंगल जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, तो वो जाने से पहले ही ये चीज़ जो है एक दूसरे से प्रॉमिस कर लेते हैं कि अगर किसी को भी कोई मुसीबत पेश आती है तो दोनों एक दूसरे को हेल्प आउट करेंगे. ठीक है, तो होता क्या है कि अचानक से उनके सामने बेयर आ जाता है. अब जब बेयर आता है तो जो एक दोस्त होता है वो तो जल्दी से डर के मारे दरख्त पे चढ़ जाता है, लेकिन जो दूसरा दोस्त है उसको दरख्त पर चढ़ना नहीं आता, तो वो समझदार होता है. वो अपनी समझदारी का मुजाहिरा करते हुए ज़मीन पर लेट जाता है और अपनी सांस को रोक लेता है. बेयर उसके करीब आता है, उसको स्मेल करता है, और वो जब उसको छूंघता है तो वो देखता है कि ये तो डेड है. और बेयर जो है वो डेडली क्रिएचर्स को नहीं खाता, तो वो उसको छोड़कर वहाँ से चला जाता है. और जब उसका दोस्त देखता है कि बेयर वहाँ से मूव ऑन हो गया, तो वो नीचे उतरकर अपने दोस्त से पूछता है कि बेयर ने तुम्हें क्या कहा. तो उसका दोस्त कहता है कि बेयर ने मेरे कान में कहा कि ऐसे दोस्तों से दोस्ती ना रखो जो तुम्हारे बुरे वक्त में काम ना आए. सो माई डियर स्टूडेंट, दैट इज़ द स्टोरी राइटिंग विच इज़ कम्प्लीटेड. ओके, और आपको आइडिया हो गया होगा. नाउ व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी? द फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड. वो दोस्त जो आपकी ज़रूरत में आपके साथ हो वही आपका सच्चा और अच्छा दोस्त होता है. ठीक है, तो कोशिश कीजिए हमेशा ऐसे दोस्त बनाइए जो आपके साथ वफ़ादार हो, आपके हर मुश्किल परेशानी में आपका साथ दे, बजाय इसके कि अगर आप किसी मुसीबत तकलीफ़ में हैं वो आपको देखकर ही दूर भाग जाए. ठीक है, तो आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लीजिए. ये एक बहुत ज़्यादा एक अच्छा नोट है आप तमाम बच्चों के लिए, क्योंकि आप लोग अभी अपने फ्रेंड्स बनाते हैं तो आप लोगों को आइडिया हो जाए या आइडिया कर लीजिए कि आपका कौन अच्छा दोस्त होगा. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द होमवर्क. अब हम होमवर्क की तरफ जा रहे हैं. माय डियर स्टूडेंट, आई एम गिविंग यू होमवर्क ऑफ राइटिंग अ स्टोरी. अब मैं आपको एक स्टोरी राइटिंग का जो है टॉपिक जो है आपको दे रही हूँ, विच यू हैव टू राइट इट इन द लैंग्वेज कॉपी. आपने ख़ुद लिखना है. आई हैव गिवन यू द ऑप्शंस. आपको भी स्क्रीन पर ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं. जैसे आपने इन ऑप्शंस में से किसी एक को सिलेक्ट करना है और एक छोटी सी 7 लाइन की पैराग्राफ की आपने स्टोरी क्रिएट करनी है. ओके, टॉपिक आपके कौन कौन से हैं? एक आपका जो टाइटल है वो है अ विज़िट टू सी साइड. ठीक है, और दूसरा है अ शॉपिंग एडवेंचर. दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग आपके टॉपिक्स हैं. इस पर आपने छोटी छोटी सी स्टोरी को जो है क्रिएट करके लिखना है. दोनों में से कोई एक आपने अटेम्प्ट करनी है. ठीक है, एनी वन यू हैव टू राइट अ स्टोरी ऑन एनी वन टॉपिक. ओके, सो दिस इज़ द लेक्चर. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए. इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी. अल्लाह हाफ़िज़.